Welcome to Code Planet Technologies Private Limited. Very happy to see all of you guys here. So before we start the session, let me first start with my introduction, and then we will carry forward to the why you are here and all kind of things. So myself, Chandrapal Singh Devda, I am founder director and head trainer here at Code Planet Technologies Private Limited. Okay, so basically, if I tell you my journey from college time till today, I got placed in too many companies. Even almost around, if I say till today, then almost around 19 to 20 companies I got offer letter from. But the thing is, I don't want any kind of job. I'm not interested in any kind of job. And that's why I decided to start my own venture, this Code Planet Technologies, and that's why I'm here with all of you. सो बेसिकली एक चीज जो भी इस सेशन में बोलेंगे, जो भी सेशन में बोली जाएगी, मैं एक चीज का आपको प्रूफ प्रोवाइड करवाऊंगा जो भी जितना भी कुछ हो रहा है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेट मी स्टार्ट विद कोड प्लैनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. Okay, so basically I was discussing about Code Planet. So Code Planet is basically a software company. We are dealing in B2B, that is business to business, means we are outsourcing projects from several vendors and startups and several companies. Like there are a lot of projects going on currently, like one logistic solution project is going on, one healthcare domain project is going on, and there are lots and lots of projects. जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे मैं एक्चुअली आपको दिखाऊंगा कि लाइव प्रोजेक्ट पे काम किस तरीके से होता है, और even you will get a chance to work on live project. Fine. Okay, so let's move forward. Okay, so what is basically the origin of this program? First, let me discuss this thing. So basically, it's a matter of disappointment for me whenever people are when like students like you, like after investing 4 years in your engineering, and at last you are not getting job. At last you are searching for job. And what currently what's your mindset is that job is very difficult thing. What difficult is a job? That is the current mindset. So basically, I'm not happy with that kind of mindset. Whatever students are getting after completing 4 years of engineering. If anyone asks me, अगर कोई मेरे से पूछता है what is the easiest thing, then I will say the easiest thing in this era is to get a job, get a decent job in a software industry. Because there are lots and lots of jobs are available in the software industry. What you need to do, क्या करने की रिक्वायरमेंट है अपने को, और क्यों लोग ऐसा फील करते हैं, एक्चुअल में ये चीजें रियलाइज करवाने के लिए ये सेशन है. तो पहला घंटा इस सेशन में, सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे को सेशन का कंटेक्स्ट सेट करना है एक्चुअल में, कि लोग सोचते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से तुम चीजों को रिलेट कर सकते हो, किस तरीके से प्रॉपर लर्निंग की रिक्वायरमेंट है. ये फर्स्ट आवर का अपना मेन इंटेंशन रहने वाला है. और उस फर्स्ट आवर के बाद वी विल स्टार्ट द कंटेंट, कि एक्चुअल में किस तरीके से कंटेंट क्या होगा, कि जर्नी भी अपने को आगे बढ़ना है, एंड व्हाट इज द मोटो, जिस पर्पज के लिए तुम आए हो क्या वो पर्पज फुलफिल होने वाला है या नहीं, तो अपन उस पर बात करेंगे एक्चुअल में. Fine. So first, let me set the context. कि actual में what is the main motto of this program and all. Fine. So just start. First, I want to ask one question from each and everyone. Why you are here? ये program join करने का main intention क्या है? That's the question I'm asking from each and everyone. So that पहले मुझे तुम लोगों का mindset जानना है, और उसके बाद I will going to change your mindset. Yeah. So first, let me know why all of you are here. Yes, I am checking your messages. Okay. So basically, जो message almost around 90% जो message आ रहे हैं वो ये है कि you want job. Fine, क्योंकि obviously ये प्रोग्राम जॉब अश्योरेंस प्रोग्राम कह के स्टार्ट हुआ होगा, तुम्हारे पास कॉल आए होंगे जो भी एडवर्टाइजमेंट हुआ है उस टाइम पे. तो obviously everyone want job and that's why you are here, right? So this is your main motive from this program, that at the end you want a decent job in a software industry, right? Yes. Okay. If somebody asks me, अगर मेरे से पूछ रहे हो आप लोग कि क्या what is the exact motto of starting this batch, किस बैच को स्टार्ट करने के पीछे एग्जैक्ट मोटो क्या है,
then I will say this is not here. The motto is that we will going to provide each and everyone a decent job and all. No, that's not a motto. Like shocking, yeah. You are coming for a job, and I'm saying that we are not here to provide a job. Yeah. So actually, the main motto of this program is we want to give you 0% rejection. Now, there's a lot of difference. You are getting a job, and you are not getting a rejection at any kind of stage. There's a lots of difference between the two things. बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा दोनों सिमिलर चीज है, जॉब मिलना, रिजेक्शन नहीं मिलना, दोनों काइंड ऑफ सिमिलर, बट दीज आर नॉट काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स. लेट मी पुट वन एग्जांपल. मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ इसको. लाइक अगर 50 कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो और आपको एक ऑफर लेटर मिल गया, एक कंपनी ने आपको ऑफर किया, एक कंपनी में आप सेलेक्ट हो गए, दैट इज द फर्स्ट थिंग. यू अप्लाइड फॉर 50 इंटरव्यू, 50 इंटरव्यू में आप बैठे और 50 में से आपके पास एक ऑफर लेटर है. और दूसरा सिनेरियो में क्रिएट करता हूं कि आप 50 कंपनी में बैठे और आपके पास 50 ऑफर लेटर है. That is the thing, that is the difference. First one out of 51 offer letter, second one out of 50 offer letter, means 0% rejection in the second one. So that is the actual thing I want, and that is the actual intention from this batch, that each and everyone should be that much capable that you are never facing any kind of rejection whenever you are appearing for any kind of software interview. Fine. So that's the main difference, that's the main motto, that you will going to get 0% rejection out of this. Fine. अब कैसे करना है, क्या होने वाला है, किस जर्नी पे तुम्हें जाना है. और डोंट वरी, आज पहले सेशन में ये बहुत कुछ पता चल जाएगा. जैसे पहले घंटे में बहुत कुछ पता चल जाएगा किस तरीके से सेशन चलने वाला है एक्चुअल में, और किस तरीके से तुम इस जर्नी में आगे जाने वाले हो. आज तक जो तुम करते आए हो, और आज के बाद जो तुम्हारा माइंडसेट होगा, 1 घंटे बाद जस्ट उसको जस्ट रियलाइज करना, उसको जस्ट कंपेयर करना, एंड यू विल गेट टू नो. फाइन. ओके. तो सबसे पहली चीज, जिस चीज में मैं आना चाहूंगा यहां से, ओके, एक्चुअली द थिंग इज, फर्स्ट थिंग, जैसे बहुत सारे एक्चुअली इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो बहुत सारे सीनियर से सुना होगा, टीचर से सुना होगा कि ऑब्वियसली इंटरव्यू में जाने के टाइम पे प्रेशर होता है. फर्स्ट इंटरव्यू का बहुत प्रेशर होता है, या फिर इंटरव्यू हो रहा है तो उसका प्रेशर होता है कि हाँ इंटरव्यू में जा रहे हैं. इवन अपने को कुछ चीज आ रही है फिर भी वो अपन नहीं बोल पा रहे हैं वहां पे जाकर इंटरव्यू में. व्हाई? बिकॉज वी आर फीलिंग टू मच प्रेशर. फाइन. ऐसा आपने सुना होगा, ऐसा आपने एक पता है, एक तरीके से लेगेसी चली आ रही है कि किसी से पूछोगे तो वो आपको यही बोलने वाले हैं कि हाँ बेटे. और किस किस तरीके से बोलते हैं पता है? अब बेटे ये नॉर्मल थिंग है, पहले इंटरव्यू में जा रहे हो ना, दैट इज नॉर्मल थिंग दैट यू आर अंडर प्रेशर. फाइन. तो पता है मोटिवेट भी कैसे कर रहे हैं? मोटिवेट इस तरीके से कर रहे हैं कि ये नॉर्मल चीज है, ये सबके साथ होता है, इसी के साथ आगे बढ़ना है. इंटरव्यू में जाओगे, पहला इंटरव्यू है, दूसरा इंटरव्यू है, तो प्रेशर तो होगा. दैट इज द थिंग. फाइन. मोटिवेट इसलिए नहीं कर रहे कोई कि इसको चेंज करना है सिनेरियो को, कि प्रेशर नहीं आए. नो, मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं कि ये इसके साथ आगे बढ़ो, ये नॉर्मल चीज है. फाइन. जस्ट वांट टू आस्क वन बेसिक क्वेश्चन. हो सकता है आप में से किसी ने सिचुएशन फेस भी की हो कि इंटरव्यू में जा रहा हो, बहुत प्रेशर हो रहा है, और जो आपको आता है इवन आप वो भी नहीं बोल पा रहे हो. या हो सकता है आपके रिलेटिव ने फेस किया हो, किसी ने फेस किया हो, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो कि एक्चुअल में मेरे को आता सब कुछ था, लेकिन मैं इंटरव्यू में गया और एक्चुअल में मैं कुछ बोल नहीं पाया. फाइन. सो I want to ask from each and everyone, just post a message, why you feel pressure at the time of interview. इंटरव्यू के टाइम पे प्रेशर फील करने का मेन रीजन क्या है? मतलब क्या माइंडसेट होता है, क्या एक्चुअल में मेंटेलिटी होती है, क्या सोच के वो प्रेशर क्रिएट होता है? एवं मेरे को सबसे आंसर चाहिए, उसके बाद मैं एक्चुअल में बताता हूँ कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए. ओके. सो बहुत सारे मैसेजेस आए, मैं उसके भी आप पे कुछ समराइज करता हूँ एक्चुअल में. लेट मी शेयर द स्क्रीन. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ एक बार.
और कुछ अपन समराइज करने की ट्राई करते हैं। ओके, सो व्हाई टू फील प्रेशर, जो कॉमन आंसर है मैं एक बार प्रेजेंट करता हूँ। तो व्हाट इज द फर्स्ट आंसर, कि एक्चुअल में ये पता नहीं होता, ये एक दिमाग में इंटेंशन होता है कि क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू अपने से पूछने क्या वाला है, और क्या वो पूछेगा उसका आंसर मेरे को आता है या नहीं आता। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये फियर होता है एक तरीके से कि व्हाट टू आस्क, क्या पूछने वाला अपने से। फाइन। सेकंड जो आंसर आया मेरे पास, वो ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बहुत सारा आंसर आया है। फाइन। और यहां से तीसरा जो एक आंसर आया है, और बहुत अच्छा आंसर है एक्चुअल में, कि जैसे सपोज करो तुम्हारे कैंपस पे कोई कंपनी आ रही है। फाइन। तो पता है एक दिन पहले अपन क्या बात करते हैं एक्चुअल में, कि कितने लोग बैठने वाले कंपनी में, लाइक 300 लोगों ने अप्लाई किया इस कंपनी में। फाइन। और आउट ऑफ 300 ये लास्ट टाइम ये कंपनी कितने को लेके गई थी, 5 को लेके गई थी सपोज। फाइन। नाउ ये एक्चुअली ये सिनेरियो जब दिमाग में आता है कि आउट ऑफ 300 ओनली 5, तो ऑब्वियसली एक जो भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है वो भी वहां पे डाउन हो जाता है। क्योंकि अंदर से अपने को पता है कि कुछ स्पेशल नहीं किया है पूरे 4 साल के दौरान अपन ने। जिस लेवल पे बाकी के 300 लोग स्टैंड कर रहे हैं, अपन भी बिल्कुल वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में इस तरीके से सोचोगे तो 300 में से 5 में आना, इट इज बिग डिफिकल्ट थिंग, और यहां से वो प्रेशर क्रिएट होने वाला है। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स। फाइन। बट अगर एक्चुअल में, चलो इस प्रेशर से बाहर कैसे आना है, क्योंकि एक्चुअल में मैंने एक चीज के साथ स्टार्ट किया है कि द इंटेंशन ऑफ दिस बैच इज 0% रिजेक्शन यू विल गोइंग टू गेट। मतलब एक सिंगल रिजेक्शन नहीं मिलने वाला है सॉफ्टवेयर लाइन में, अगर तुम अपना करियर बनाना चाहते हो। और इस चीज को अचीव करने के लिए जो सबसे पहला जो ऑब्स्टेकल होता है, वो होता है ये प्रेशर सिचुएशन। क्योंकि अगर प्रेशर सिचुएशन आई तो तो ऑब्वियसली रिजेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। फाइन। तो सबसे पहले प्रेशर सिचुएशन को डील कैसे करना है, ये पहले दिन मैं आपको बता रहा हूं। ऑब्वियसली इसकी जर्नी बहुत बड़ी है जो अपन डिस्कस करेंगे, बट देन ये 1% नहीं लगने वाला तुम्हें। फाइन। हाँ, ये पहले दिन मैं वर्ड बोल रहा हूं, 1% तुम्हें ये नहीं लगने वाला एक्चुअल में। क्या करने की रिक्वायरमेंट है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता तुमसे, और उसके बाद तुम जो आंसर करोगे उस क्वेश्चन का ना, उसी में एक्चुअल में इसका इसका आंसर है कि हाउ यू कैन फील प्रेशर फ्री एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। फाइन। एक्चुअल में ये रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पूरा पहला घंटा इस चीज को डिनोट किया एक्चुअल में, कि ये चीजें जो कंटेक्स्ट सेट करना है एक्चुअल में ये कितनी इंपॉर्टेंट है, दीज आर डेडली इंपॉर्टेंट। जब तुम अपना पहला इंटरव्यू फेस करोगे ना, तो ये सेशन, ये 1 घंटे का सेशन, यू विल गोइंग टू रिमेंबर, ये सेशन याद आने वाला कि एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। फाइन। चलो मैं क्वेश्चन करता हूं, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। चलो अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन की लिस्ट है, और कल के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर एग्जैक्टली यही 10 क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला है, मैंने एक दिन पहले तुम्हें बता दिया। फाइन। नाउ जब तुम इंटरव्यू रूम में जा रहे हो, क्या तुम प्रेशर फील करोगे, यस और नो? दैट इज द क्वेश्चन। फाइन। हाँ, नाउ आई एम गेटिंग द आंसर। Each and every, mostly people are saying no. Most students are saying no, mostly in the sense 99% students I'm getting response that no. फाइन। वो 1% का रेस्पॉन्स अगर किसी का ये सारा, वो भी चेंज होगा, डोंट वरी। बट जो कॉमन रेस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है दैट इज नो। बस इतना ही सिंपल है ये। तो मतलब एक्चुअली तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें यही चाहिए ना कि कल मेरे से क्या पूछा जाने वाला है, या इस इंटरव्यू में मेरे से क्या पूछा जाने वाला है, यही चाहिए ना तुम्हें। अब पता है एक एक, एक मेंटेलिटी, और एक एक ये फैक्ट है
जो तुम रियलाइज करोगे एक्चुअल में तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम पे। तो चलो एक सेकंड क्वेश्चन और पूछता हूँ और फिर दोनों को मिक्स करके तुम्हें मैं इसका आंसर देता हूँ। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। द सेकंड क्वेश्चन इज, अच्छा एक बार बताओ, बहुत ऐसा लगेगा बहुत क्या सिली सा क्वेश्चन पूछ रहे सर, है ना, आप क्या पागल टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे, बट एक बार मेरे को इसका रेस्पॉन्स चाहिए। अच्छा एक बार बताओ मेरे को, इंटरव्यू कौन लेता है? जो इंटरव्यू लेता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब इंटरव्यू कौन लेता है, क्वेश्चन कौन पूछता है इंटरव्यू में तुमसे? हाँ हाँ, इंटरव्यू में जब जाते हो तो तुमसे क्वेश्चन आंसर कौन करता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। पर एक्चुअल में 99% लोगों के आंसर है इंटरव्यूअर। ऑब्वियसली इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता अपने से, तो सही भी है, इसमें गलत क्या है? फाइन, या इंटरव्यूअर है या एचआर राउंड में जा रहा हो तो जो एचआर है वो तुमसे क्वेश्चन पूछे, ऑब्वियसली इंटरव्यूअर है। इंटरव्यू इज अ कॉमन वर्ड, वो कोई कोई सा भी राउंड हो। फाइन, जो इंटरव्यू ले रहा है ऑब्वियसली अपन उसको क्या डिक्टेट करेंगे इंटरव्यूअर, तो क्वेश्चन कौन पूछता है अपने से? इंटरव्यूअर पूछता है, राइट। बट एक्चुअल में अगर टू द फैक्ट अपन बात करें ना, तो ये रॉन्ग आंसर है। जो तुमने अभी दिया कि क्वेश्चन कौन पूछता है, इंटरव्यू पूछता है, दैट इज द रॉन्ग आंसर। फाइन, इवन अगर किसी को एक्सपीरियंस है, किसी ने पता है एक्चुअल में किसी ने कोई एचआर वेचआर के लिए कोई भी इंटरव्यू दिया हो, तो वहां पे इस तरीके का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। फाइन, तो एक्चुअल में पता है कभी इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं लेता है, ये हमेशा तुम खुद का इंटरव्यू लेते हो। हाँ, ये सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट दैट इज फैक्ट। फाइन, तो कैसे खुद का इंटरव्यू को कैसे ले सकता है, मैं बताता हूं तुम्हें। पता है जस्ट इंटरव्यूअर का काम क्या होता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन वो पुटअप करेगा तुमसे, उसके बाद जितने भी वो क्वेश्चन करेगा उसके बाद वो डिपेंड करेगा कि तुमने उस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है। अब तुम्हारे पास दो तरीके एक्चुअल में, एक तो वही कॉमन आंसर जो बुक में होता है, जो जहां से भी पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ा है अपन ने, किसी ने बताया अपने को, या वॉट एवर, जो भी रिसोर्स, जहां भी जिस रिसोर्स अपन ने पढ़ा है वो कॉमन आंसर अपन ने दे दिया। अब पता अगर वो कॉमन आंसर दिया तो पहले वाला क्वेश्चन खत्म होगा, तो इंटरव्यू क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। बट अगर तुम वो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर देते टाइम कुछ इस तरीके से कुछ चीज को मेंशन करते हो उस आंसर में, तो 100% जो चीज तुमने मेंशन की है ना, इंटरव्यू उस चीज को पकड़ेगा और वो तुम्हारा अगला क्वेश्चन बनेगा। फाइन, अब जब सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो उस टाइम तुमने कुछ मेंशन किया है, वो वहां से पिकअप होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, फिर थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। तो मतलब पहले इंटरव्यू में जा रहे हो या कोई से भी इंटरव्यू में जा रहे हो ना, इस चीज को टू द फैक्ट नोट करना, ये होता है या नहीं होता है। अगर ये नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारे आंसर देने में प्रॉब्लम है, तुम वही कॉमन आंसर दे रहे हो जिसपे अगला क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो पता तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है, तुम्हें हर क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करना है कि उस क्वेश्चन के आंसर में एक ऐसा वर्ड होगा जो सामने वाले इंटरव्यू को लगेगा ये डिफिकल्ट वर्ड है, तुमने यूज कर लिया गलती से, और अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम्हें नहीं आएगा, तुम फंस जाओगे एक्चुअल में। तो इंटरव्यू का काम यही होता है, किसी पॉइंट पे जाकर तुम्हें फंसाना एक्चुअल में उसको। तो वो अगला क्वेश्चन उसको पूछेगा जबकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, अपन चाहते हैं कि वो क्वेश्चन पूछे वही। तो उसको भले ही लग रहा होगा सामने वाले को कि वो इंटरव्यू ले रहा है, बट तुम्हें पता रियलिटी क्या है। फाइन, और पता इस लेवल पे जब सोचने लगोगे ना, तो पता ये जो जिसको तुम प्रेशर बोलते हो ना, ये मुझे लगता है कहीं पे स्टैंड करेगा इस पूरे सेशन में, थ्रू आउट द थिंग। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो मैं बताऊंगा या कोई भी मेंटर बताएगा कि इस तरीके से आंसर देना है, तो तुम उस आंसर को देखना,
उस आंसर से कीवर्ड निकलता है नहीं निकलता, हर एक क्वेश्चन के आंसर से वो कीवर्ड निकलेगा जिससे तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन बनेगा। और फिर तुम देखना किसी भी बुक या कहीं से भी रेफरेंस से उस क्वेश्चन का आंसर, और दोनों आंसर को कंपेयर करना, एंड यू विल गोइंग टू रियलाइज कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और इस प्रोसेस को करने के बाद ये हट जाएगा। और अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये तुम्हें पहले से पता है कि ये 10 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन, या तुम खुद को पता है, तुम खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो कोई रिजेक्शन मिलने के चांसेस है क्या? नहीं, वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। और भी कुछ चीजें हैं वो अपन शेयर करेंगे, बट पहले दिन एक्चुअल में ये सेशन स्टार्ट करने से पहले वो माइंडसेट जरूरी है एक्चुअल में। अगर वो तुम्हारा माइंडसेट नहीं है तो मतलब नहीं इसका। इसलिए पहले दिन के पहले सेशन को मैं वहां पे कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा हूं कि वो माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए जो एक्चुअल में सेशन के लिए चाहिए, जो एक्चुअल में जीरो रिजेक्शन के लिए चाहिए। तुम्हें आज ये बहुत बड़ा वर्ड लग रहा होगा जीरो रिजेक्शन, बट अगर ये माइंडसेट जो कि 100% हर एक स्टूडेंट 1 घंटा सीरियसली अगर इसको सुनेगा ना, 1 घंटे के बाद वो तुम्हारा माइंडसेट वो होने वाला, और ये 1 घंटा छोड़ो, सेशन जैसे जैसे लेते जाओगे वो माइंडसेट पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब तुम इस स्टेज पर होंगे ना, तुम खुद से बोलोगे वो जीरो रिजेक्शन की कैटेगरी है। फाइन। और पता और भी ये चीज, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिक चीज जो एक इंटरव्यू में चाहिए। अभी पता तीसरा, मैं थोड़ा इस पे आता हूं। और पता किसी ने एक बहुत अच्छा आंसर किया था ये वाला, जब मैंने पूछा था, किसी ने मैसेज किया था कि बहुत सारा क्राउड होता है और उसमें मेरे को ये डर लगता है कि मैं का स्टैंड कर रहा हूं। फिर मैंने उसको थोड़ा जनरलाइज करके तुम्हें समझाया 300 में से 5 एंड ऑल, बट उसका एग्जैक्टली ये था। फाइन। अब कुछ यूनिक चीजें, 2 चीजें हैं जो इंटरव्यू रूम में तुम्हें यूनिक बना सकती है। एक तो तुम आंसर किस तरीके से करते हो। तुमसे पहले 299 लोगों ने क्या आंसर किया, तुम एक क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करते हो। कभी बार ऐसा लगता है ना, बाहर आके बोलते हैं अरे ये सबसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा होता है ना, कभी कोई इंटरव्यू देके आता तो बाहर लाइन से लग जाती है, अरे क्या पूछा क्या पूछा, फिर वो बता ये क्वेश्चन, अगले वाला गया यार मेरे से भी यही पूछा, तो फिर तीसरा बंदा क्या कहेगा, अरे सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है। और अपन इवन आंसर भी उससे पूछता, अच्छा तूने इसका आंसर क्या दिया था। फाइन। तो अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, अगर वो सेम क्वेश्चन पूछ रहा सामने वाला, तो वो जज कैसे करेगा, वो 300 में से 5 निकालेगा कैसे? क्वेश्चन तो वो सेम पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन तो वो सेम पूछ रहा है, आंसर भी सेम ही होगा। कोई ऐसा नहीं कि तुम, अगर वो सही होगा तो तुम पूरा आंसर ही बदल दोगे, नहीं, सही होगा तो आंसर वही होगा उसका। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ऑब्वियसली लैंग्वेज पे तुम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो वो तरीका अलग हो सकता है। तो नाउ एक चीज तो तुम्हें ये स्पेशल बना सकते हो कि तुम उसका आंसर किस तरीके से देते हो क्वेश्चन का, जो यूनिक हो। और दूसरी चीज, कुछ ऐसा टैग हो तुम्हारे साथ जो उसको यूनिक बना सकता है। पर जनरली मैं एक बात करूंगा, पर एक चीज होती है और जो स्टूडेंट लेवल में बहुत बड़ी लगती है, और मुझे पता है, आई एम श्योर कि तुम्हें सबको लग रहा होगा इवन, और वो चीज है अ, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो सर्टिफिकेट। और आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत सारे लोग ये सोच के भी सर्टिफिकेट मिल रहा, वो मिल रहा, बहुत सारे सेशन, बहुत सारी वर्कशॉप जो जगह जगह पर होती है, भले वो कितनी बोरिंग हो, लेकिन अपन उसको अटेंड करते हैं किसके लिए, सर्टिफिकेट मिलेगा। फाइन। क्या काम आएगा सर्टिफिकेट, किसी पूछो, कि सीनियर से पूछो क्या काम आएगा सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं। और पता है, जब जब जॉब के इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, एक बहुत बड़ी सी फाइल बनानी पड़ेगी। उस फाइल में मार्कशीट के बाद रखोगे क्या, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, 20-25 सेल होती है उसमें, क्या रखोगे उसमें, उसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी है। हाँ, सर्टिफिकेट होगा ना तो काम का होगा लास्ट में। अब पता है, एक्चुअली मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ कि अगर ऐसा सोच रहे हो ना, तो तुम किसी और वर्ल्ड में रह रहे हो फिलहाल, क्योंकि ये बहुत पहले होता था, और ये वो जमाना था ना जब ये होता था कि सर्टिफिकेट देख के तुम्हें जॉब मिल जाती थी, जब कोई ये बोलता था कि 10-12 के परसेंट के ब्याज पे जॉब मिल जाती है। ये भी एक जमाना था ना। हाँ, तो जब ये जमाना था तो ये भी जमाना था। फाइन। अब पता इसकी वैल्यू ये है
कि कोई तुम्हारे रिज्यूमे से बाहर एक चीज भी नहीं देखने वाला इंटरव्यू, ना तो उसके पास इतना टाइम है और ना उसको उस कचरे से मतलब है। फाइन। अब एक्चुअल में मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम चाहते हो ना वो देखे, तुम चाहते हो ना सर्टिफिकेट, है ना, तो वो सर्टिफिकेट ये नहीं होना चाहिए एक्चुअल में। ये टाइम पास की, यहाँ से वर्कशॉप अटेंड की, यहाँ से वर्कशॉप अटेंड की, ये वाला सर्टिफिकेट नहीं होने चाहिए। पर वो सर्टिफिकेट कौन से होने चाहिए? जिसको अर्न करने में एफर्ट लगे। मतलब जो जस्ट खाली 2 घंटे का सेशन या 2 घंटे की अटेंडेंस लगवा के जो मिलता है ना, वो नहीं। एफर्ट वो नहीं होता। जिसको जिसको एक्चुअल में गेन करने के लिए एफर्ट चाहिए, या जो एक्चुअल में तुम ऐसा कुछ दिखा दो कि जो तुम्हारे सामने जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है ना, उसके पास भी नहीं हो। मतलब वो भी इतना कैपेबल नहीं है कि वो सर्टिफिकेट वो अचीव कर पाए और वो तुम्हारे पास हो। फाइन। बहुत वर्थ है। और फिर तुम्हारा आंसर अलग नहीं करेगा कि तुम आंसर क्या देते हो, उसके ब्याह पे वो तुम्हें जस्टिफाई नहीं करेगा कि तुम 300 से अलग कैसे हो। वो तुम्हारी एक चीज ही जस्टिफाई कर देगी। पर एक्चुअल में एक चीज मैं पहले बोलना चाहूंगा, मैं जो भी इस सेशन में बोल रहा हूं, एक एक चीज में वही बोल रहा हूं जो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है यहां तक की जर्नी में। फाइन। तो बिकॉज द सिंपल थिंग इज, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। पहले मैं एग्जाम्पल देना ज्यादा पसंद करूंगा, थोड़ा प्रूफ पे बात करते हैं। पर पूरे सेशन में मतलब वो टेक्निकल स्टफ हो या नॉन टेक्निकल स्टफ हो, जो मैं बोलूंगा या जो कोई भी मेंटर बोलेगा वो प्रूफ के साथ बोलेगा। ये जरूरी है एक्चुअल में। तो खाली मैं यहाँ पे कोई तुम्हें स्पीच देने नहीं आया हूँ। फाइन। तो चलो मैं प्रूफ देता तुम्हें, मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में, और फिर मैं उसकी वर्थ दिखाता तुम्हें। फाइन। चलो चलो मैं दिखाता तुम्हें। तो पता है, कोई अगर बिलोंग करता है, पहले मैं 2-3 चीजें दिखाने वाला हूँ। कोई अगर बिलोंग करता है, मान लो जावा सेक्टर से बिलोंग करता है सपोज। फाइन। अब मैं कोई यहाँ पे कोई लैंग्वेज वैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, जस्ट अगर कोई बिलोंग करता है जावा सेक्टर से, अगर वो जावा पढ़ रहा हो या उसने जावा पढ़ रखी हो, तो मुझे लगता है एक नाम तुमने सुना होगा। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये मेरे को पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए जावा करंटली किस कंपनी के अंडर में आती है, तो ऑब्वियसली अपने को पता है, बहुत लोगों को पता होगा, ओरेकल कॉर्पोरेशन के अंडर में आती है। फाइन। तो बताओ, तुमने अगर ये सुन रखा है या तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है जावा में, या तुमने पढ़ रखी है, तो तुमने एक चीज जरूर देखी होगी, और वो है या सुनी होगी किसी से। अगर नहीं सुनी हो तो फिर तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में जावा पढ़ रहे थे। फाइन। क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होता है जावा का, वो है ये सुना होगा नाम, ओसीजेपी, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल। मतलब जहां पे ये ओरेकल कंपनी तुम्हें खुद डिक्लेयर करती है दैट यू आर प्रोफेशनल इन जावा लैंग्वेज, you know a lot of things, you know almost each and everything about the Java language, then you can deal any kind of problem in Java। ये सर्टिफिकेट शो करता है एक्चुअली। फाइन। मैं जस्ट जस्ट इंट्रोडक्शन दूं, बाकी बात अपन बाद में करेंगे कि इसके कितने इंपॉर्टेंस एंड ऑल। मैं जस्ट अगर इंट्रोडक्शन दूं, तो एक्चुअली में एक ओरेकल कंपनी जो है ना, वो खुद एक एग्जाम कंडक्ट करवाती जावा का, और उस एग्जाम में तुम्हें 60% या 60% से ज्यादा मार्क्स गेन होते हैं, तो तुम्हें ओरेकल कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है वो इसका, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल। बट बिलीव मी, ये 60% गेन करना ना बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई जावा से बिलोंग करता है ना, जाके आज नेट पे सर्च करना सैंपल पेपर और सॉल्व करना उसको, पता चलेगा एक्चुअल में कि दिस इज वेरी डेडली डिफिकल्ट थिंग। इवन इवन प्रोफेशनल लेवल पे लोग करने से पहले सोचते हैं 4 साल एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस के बाद। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक्चुअल में कि फैक्ट क्या, फिर मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी दिखाऊंगा तुम्हें। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक्चुअल में, जब मैं एक्चुअल में कॉलेज में था ना, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, तब मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया था, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली जावा में इंटरेस्ट था, है, मेरा तो रहेगा। सब में बहुत बहुत सारी लैंग्वेज है, अकेली जावा नहीं। मैं दूसरी लैंग्वेज का भी तुम्हें दिखाऊंगा। तो मैं तुम्हें ओरेकल की साइड से ही दिखाता हूँ एक्चुअल में। ठीक है ना, तो यहाँ मुझे लगता है स्क्रीन विजिबल हो रही होगी ना? स्क्रीन इज विजिबल टू ईच एंड एवरीवन? यस, जस्ट जस्ट टू मैसेज।
ओके, ओके, फाइन, 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 स्टॉप पोस्टिंग मैसेजेस, गॉट इट। विजिबल हो रहा है, अच्छा। तो ये देखो, ओरेकल की साइट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा पहले, वो ये कंज्यूम करता, टाइम कंज्यूम करता है इसलिए। अब मैं यहाँ पे जस्ट जाता हूँ डाउनलोड ई सर्टिफिकेट पे। ठीक है, जस्ट जस्ट वेट। हाँ, जैसे ये रहा। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, जस्ट एक सेकेंड, ये जस्ट मिनट। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअल में एक एग्जाम का दिखेगा, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल। और यहाँ से अगर मैं सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहूँ ई कॉपी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल प्रिंट करके। यस, जस्ट अ सेकंड, जस्ट सी। मैं पहले दिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को उस लेवल पे एक्चुअल में ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ से नीचे तुम्हें वो वाली जर्नी दिखे, तुम्हारी जीरो रिजेक्शन वाली। और एक्चुअली मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये तुम खुद फील करोगे। फाइन, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। फाइन, तो यहाँ पे जैसे नाम है चंद्रपाल सिंह देवड़ा, दिस 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 इज माय नेम। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये ओरेकल का सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दिख रहा होगा। अब मैं तुम्हें एक और चीज शो करता हूँ एक्चुअल में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना तुम्हें कि 60% गेन करना एक बहुत बड़ी चीज है इस एग्जाम में। फाइन, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका स्कोर शीट। तो लेट मी पुट स्कोर शीट आल्सो, स्कोर शीट भी देखते चलो अपन। तो ये जो बहुत सारी मिथ बनी हुई आती है ना कि ये बहुत डिफिकल्ट है, या ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, बट देन जीरो लेवल की रिजेक्शन, 0% की रिजेक्शन वाली जर्नी में ये एक्सट्रीमली इजी है। चलो अपन वो भी देखते हैं। मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि हर एक चीज में तुम्हें प्रूफ पर डील करूंगा। तो लेट्स से रिजल्ट हिस्ट्री यहाँ पे हो वो, साथ में जो मार्कशीट में, तो मार्कशीट भी दिखाता हूँ एक्चुअल में यहाँ पे। तो इसको रिपोर्ट देखते चलो अपन। हाँ, थोड़ा शॉकिंग होगा तुम्हारे लिए, बट वो महीने 2 महीने के बाद तुम्हारे लिए भी शॉकिंग नहीं होगा। तो जैसे मैं बोला था तुम्हें, चलो यहाँ पे नाम, पासिंग स्कोर कितना है? तो मैंने बोला था 60-61 है। और इसको कितना है? हाँ, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं था इस एग्जाम का। अब पता रियलिटी क्या है, क्या वैल्यू है इसकी? पता कोई सा इंटरव्यू हो रहा हो ना जावा का, बस जाके बैठ जाओ। पता ये वर्थ है इसकी, क्योंकि 99% केस में जो तुम्हारा सामने जो इंटरव्यू होगा ना, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, उसके पास भी नहीं होगा सर्टिफिकेट। और होगा तो ये कॉलम में, ये थोड़ा इम्पॉसिबल की कैटेगरी वाला कॉलम है, तो इस कॉलम में ये नहीं दिखेगा तुम्हें। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि वो तुमसे क्वेश्चन क्या करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको भी लग रहा है सामने वाला को मेरे से भी अच्छा नॉलेज है, क्या क्वेश्चन करेगा तुमसे वो। फाइन, अब मेरे को एक बात बताओ, तीसरी चीज पे मैं आता हूं। 300 में से 5, मैं कह रहा हूं 300 में से 1 भी अगर होता, तो क्या फर्क पड़ता? तो नहीं पड़ता। चलो मैं तुम्हें और भी दिखा दूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑफर लेटर है। फाइन, बट ऑब्वियसली आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ जॉब, वो मैं शेयर करूंगा। बट देन अभी मैं तुम्हें एक्चुअली उसका भी दिखाता हूँ। तो मैं एक आधी कंपनी का तुम्हें ऑफर लेटर भी दिखाता हूँ। तो इवन पता है तुम्हें, अभी ये थोड़ा कोविड क्राइसिस चल रहा था कि जॉब नहीं है, जॉब इवन बहुत कम हो गई, तो मैं दिखाता हूँ ये सब झूठ है। खाली एक ही चीज की वैल्यू है, वो तुम्हारा नॉलेज है, बाकी सब झूठ है। और ये बड़ी कंपनी, Tier 1 कंपनी कुछ नहीं है। सबके तुम इंटरव्यू इतनी इजीली निकाल सकते हो। तो मैं तुम्हें एक शो कर लेता हूँ, ज्यादा फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना दिखा दिखा तो मुझे लगता है पूरा सेशन निकल जाएगा। चल लेट मी पुट दिस, एक देखते हो खाली उसकी डेट देखते हैं अपन।
कि वो कब, क्योंकि इवन मेरे को जॉब नहीं करनी, लेकिन मेरे को इंटरव्यू देने में मजा आता है, क्योंकि ऐसा लगता है थोड़ा इंटरव्यू का मजे तो लेके आते हैं, है ना? कि पता है पूछेगा क्या। यू कैन सी दिस, एंड आई थिंक ये डेटेड, हाँ डेट वेट देख देख लो यहाँ पे। जस्ट सेकंड, ये पीडीएफ लोड हो रहा है। जस्ट सेकंड, चल गया। या 1 सेकंड। एक सेकंड। हाँ, तो मुझे लगता है ये दिख रहा होगा, तुम अच्छे से देख ही रहे होंगे उसको। दैट इज़ थिंग। तो इवन मैं बोल रहा हूँ, अब हर एक चीज़ ओनली अपन प्रूफ में डील करेंगे। और इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ अभी आज के दिन तुम्हें बड़ी लग सकती है, बड़ी चीज़ 1 महीने के बाद बहुत छोटी लगेगी। फाइन, इवन आई कैन शो यू पाइथन में बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, और लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन इन पाइथन आल्सो, वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डेवऑप्स हो। फाइन, कभी देखेंगे उनको भी। ओके, नाउ कमिंग बैक अगेन। ओके, सो नाउ अपनी जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो 0% रिजेक्शन की अपन बात कर रहे हैं। थोड़ा मैं कुछ और शेयर करता हूँ इस प्रोग्राम में क्या चलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। फाइन, किसी ने कमेंट किया है पाइथन सर्टिफिकेट का, पाइथन सर्टिफिकेट कैसे होता है। ऑब्वियसली आई विल शेयर दिस, ये सर्टिफिकेशन कैसे होते हैं, क्या होता है, कौन सा एग्जाम होता है, शेयर करूंगा मैं, डोंट वरी एट ऑल। फाइन, मैं खाली तुम्हें वो दिखा रहा हूँ कि तुम इंटरव्यू रूम में खुद को यूनिक कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ दैट्स द ओनली इंटेंशन। और जो ये लगता है तुम्हें कि ये इतना डिफिकल्ट है या वो कुछ है, वो कितना इजी है एक्चुअल में, दैट दैट इज माय इंटेंशन। फाइन, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल बता तुम्हें, इवन क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत बात बोली एक्चुअल में कि बहुत सारे लोग ये सोच के आए हैं और ये सोच के इसको अटेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब चाहिए। बट एक्चुअली मैंने बोला है कि एज ए कोड प्लानिट, और ये अगर मैं खुद को रिप्रेजेंट करूं तो ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सबको जॉब दिलाना है। इंटेंशन जो है वो ये है कि 0% रिजेक्शन है, ये इंटेंशन है एक्चुअल में। जॉब दिलाना बड़ी बात नहीं। अगर तुम्हें ये लगता है कि जॉब बड़ी बात है, मुझे लगता है कि वो 1 साल स्ट्रगल कर सकते हो, 6 महीने स्ट्रगल कर सकते हो, वो भी क्यों कर रहे हो आई डोंट नो, क्योंकि इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। बट उसके बाद ऑब्वियसली जॉब तो लगेगी सही। अब तुम 50 की जगह 100 दे दोगे अगर इंटरव्यू, तो एक आधा तो लगेगी सही, एक आधे में तो वो लक भी चली जाएगा कि तुमने 4 क्वेश्चन पढ़ के वही 4 क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, काम हो गया। फाइन, तो एक्चुअली में ये इंटेंशन नहीं, और ये इंटेंशन तुम्हें भी नहीं रखना है। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ इस इंटेंशन, ये मेंटेलिटी होने का। अभी पता है अभी थोड़े दिन पहले कि अभी भी इवन इट्स गोइंग ऑन, लाइक कोविड सिचुएशन चल रही थी, और सुना होगा तुमने, हो सकता है तुम्हारे साथ हुआ हो, या फिर तुम्हारे किसी रिलेटिव के साथ हुआ हो, या फिर तुमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या लिंक्डइन पे या बहुत सारी जगह पे तुमने देखा होगा, लोग बातें कर रहे हैं इस बारे में कि एक्चुअली में कंपनी अपने बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। फाइन, तो कंपनी फायर कर रही है और इवन बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको ओनली पोटेंशियल कैंडिडेट ही रखने हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इस सिचुएशन में कंपनी के पास फंड नहीं उनको देने के लिए, तो वो चाहेगी कि उनका फंड ओनली मतलब जो काम के कैंडिडेट है उन्हीं को रखे। फाइन, उसके बाद पता है एक्चुअली में क्या करते हैं, तुमने देखा होगा लिंक्डइन पे, अगर मैं अभी मेरा लिंक्डइन खोल के बताऊं, कम से कम बहुत सारे मैसेज तुम्हें दिखेंगे जिसमें ये लोगों का मैसेज है कि आई लॉस्ट माय जॉब इन दिस कोविड सिचुएशन, सो कहीं पे अगर कुछ हो, रैपर वैपर व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग। फाइन, और इवन फिर लोग उस कंपनी को जिसने उनको फायर किया ना, उसको एक मतलब अब्यूज भी करते हैं कि कैसी कंपनी है जो इस सिचुएशन में अपने एम्प्लॉय को छोड़ रही है व्हाटएवर। फाइन,
तो पर्सनली अगर मेरे से पूछे, दिस माय पर्सनल फीलिंग, तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल 1% भी कोई गलत है इसमें। मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि वो निकाल रहे लोगों को, बिल्कुल गलत नहीं है। क्या गलत है? फाइन। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को किसी को अब्यूज करना चाहिए ना, तो खुद को करना चाहिए बजाय कंपनी। पता प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें सीधा-सीधा इस स्टेज पे आके कंपनी ये बता रही है कि तुम्हारा नॉलेज डिजर्विंग नहीं है। तो अब तुम पूछोगे उस मोमेंट पे हायर क्यों किया? तो उस मोमेंट पे तुमने हायर इसलिए किया क्योंकि दे जस्ट वांट बैकअप। कभी काम ज्यादा आ सकता है तो वो बैकअप चाहिए उनको बस। लेकिन अब जब काम फिक्स है कि इससे ज्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो उनको बैकअप नहीं चाहिए। और बैकअप नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली निकालेगी वो। तो पता है इसके इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल एक चीज है। पता ये हुआ होगा कि जब स्टार्टिंग में जब तुम जॉब सर्च कर रहे होंगे, 50 तुमने इंटरव्यू दिए होंगे और एक जॉब लग गई होगी, बहुत खुशी होगी। वो खुशी होगी, यार जॉब मिल गई, जॉब मिल गई, जॉब मिल गई। और पता वो खुशी कितनी है कि वो खुशी में ये भूल गए कि 49 रिजेक्शन मिले हैं। जॉब एक मिली है, 49 रिजेक्शन मिले, बट उसको इग्नोर करके अपन अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। क्या सोचा ठीक है, हो गया काम। बट अब जब वो निकाला गया है, तो मुझे लगता है ये वापस आ रहे हैं। क्यों? अब दिक्कत है ना, क्योंकि नॉलेज तो था नहीं उस टाइम पे, हो गया वो 50 में ये वो लकी होता है। अब अब दिक्कत। और पता है इस पॉइंट को मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक भी चीज मेरे को मैं वो नहीं बोलता जो एक्चुअल में यहाँ कहीं पे लिखा है या वो है, या मुझे तुम्हें मोटिवेट करना है पहले दिन, या इसकी सेशन लो, या ये करियर आर्किटेक्ट प्रोग्राम ज्वाइन करो, तुम उसके लिए तुम्हें मोटिवेट करना लो। इवन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे सेशन स्टूडेंट के लिए करता हूँ। मैं उसमें उनको बताता हूँ एक्चुअली मेरी राइट गाइडेंस क्या है। ये एक काइंड ऑफ मेरा अफेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ। आई डोंट नो व्हाई, बट या ये है। मुझे अच्छा लगता है कि किसी का अगर कोई राइट डायरेक्शन में जा रहा है, किसी का करियर अगर उस ग्रोथ लेवल पे जा रहा है, अगर उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो रहा है, अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि आज से 10 साल बाद भी उसको 1% भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, तो इसमें मुझे खुशी मिलती है। दैट द थिंग। फाइन। तो इवन हर सिनेरियो जो मेरे को बोलना है मैं उसको प्रूव करता हूँ। पता प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि जब लोगों को लग रहा है ना कि जॉब बहुत डिफिकल्ट और कोविड सिचुएशन चल रही, लोगों को निकाल रहे हैं, उस मोमेंट में खाली टाइम पास के लिए आई अपियर्ड इन द 5 कंपनी फॉर इंटरव्यू। रिजल्ट तो मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऑल टू ऑल 5 या इन दिस कोविड सिचुएशन ओनली आई एम टॉकिंग। ऑल टू ऑल 5 गॉट सेलेक्टेड। इवन मैंने एक बड़ी कंपनी का तुम्हें दिखा भी दिया। फाइन। मैं खाली बस एक चीज प्रूव करना चाहता हूँ, एक चीज मैं खाली प्रूफ नहीं करना चाहता, एक्चुअली मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वो मेरे तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ कि पिन पॉइंटेड डायरेक्शन में अगर आगे अपनी जर्नी को ले जाते हो ना, इससे इजी चीज कुछ नहीं है। और इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं है कि उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय करने वाला। अदरवाइज हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। पता लोग अभी भी मेंटेलिटी है, और हो सकता है कि बहुत सारे तुम्हारी मेंटेलिटी नहीं हो तो तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी ये सोचते होंगे। तुम कोई बात करना आराम से बैठ के अपने पेरेंट्स से, या तुम खुद से भी सोचते होंगे बहुत सारे लोग। पता वाई लोग प्रिफर क्यों करते गवर्नमेंट जॉब को, प्राइवेट जॉब से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब को प्रिफर क्यों करते लोग? अगर किसी के पास ऑप्शन है कि प्राइवेट जॉब है गवर्नमेंट जॉब है, लोग कौन सी लेंगे? गवर्नमेंट जॉब लेंगे। वाई? चलो एक बार मैं तुमसे आंसर मांगता हूँ, ऐसा क्यों? या यू कैन पोस्ट योर आंसर यार। लेट मी चेक। अगर मैं तुमसे आंसर मांगू ऐसा क्यों? वाई? हाँ। तो अभी तक जितने भी आंसर आए ना, सारे बस एक ही है। क्या? सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी। हाँ ये वो बड़ा वर्ड है, सुनने में अच्छा लगता है। जॉब सिक्योरिटी। फाइन। और क्यों चाहिए वो जॉब सिक्योरिटी? क्योंकि अंदर से अपने को पता है कि दिक्कत है अपने साथ। अब उस दिक्कत से बचना चाहते हो, जॉब सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हो, इसीलिए लोग प्रिफर करते हैं। एक बार लग गई ना, तो कुछ भी नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। यहाँ पे ये हो सकता है प्राइवेट में, कोविड आया निकाल दिया। बट एक चीज मैं मानता हूं कि अगर अगर तुम्हारा लेवल ये है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो फिर तुम देखोगे भी नहीं कभी इसकी तरफ। ये सबसे बकवास चीज यही होती है, ना कोई ग्रोथ है तो बहुत स्लो ग्रोथ है अगर प्राइवेट से कंपेयर करोगे तो।
न तुम्हारी कोई टैलेंट की वैल्यू है। अगर तुमसे कोई ऊपर वाली पोजीशन पे है तो भले तुम में कितना भी ज्यादा टैलेंट है तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके सामने तुम एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते। फाइन। लेकिन तुम उसको एंजॉय करते हो गवर्नमेंट जॉब को, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जॉब सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि तुम खुद से डर रहे हो, तुम खुद पे वो ट्रस्ट नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं क्राउड में स्टैंड कर सकता हूँ आगे चल के। दैट्स द रीजन। फाइन। तो पता मैं ऐसी चीजों में खुद को चैलेंज करता हूँ कि जब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ना तो अपन उल्टा करते हैं। जब लोगों की जॉब जा रही है ना, अपन देखते हैं कि मिलती नहीं मिलती। ऐसी कौन जॉब है जो नहीं मिलती? फाइन। या अब एक चीज और जो मैं कमेंडेबल तुम्हें बताना चाहता हूँ एक्चुअल में, और जो एक्चुअल में जो मेरा इंटेंशन है, जो एज ए कोड प्लानेट पे लेके चलता हूँ कि ये इंटेंशन है, और वो लगभग हमेशा मेरा इंटेंशन होता है। फाइन। क्या एक्चुअल में एक चीज और तुम्हें पता होगा, जब भी तुम्हारे पास कॉल आया होगा या फिर इसको प्रमोट किया गया होगा वॉट एवर, तो एक चीज हमेशा तुम्हारे साथ चली होगी, 10 days फ्री सेशन करके ऐसा कुछ ये लिखा आया होगा, 10 days सेशन एंड ऑल। तो मैं एक चीज क्लियर आउट करता हूँ पहले, तो ये इसके पीछे पर्पज क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में। पर एक्चुअल में इसके पीछे पर्पज क्या है तुम्हें 10 days प्रोवाइड करवाने का? इसके पीछे पर्पज ये है कि जनरली ऐसा होता है कि कोई से बैच स्टार्ट होता है, कहीं पे तुम जाते हो, 2 या 3 दिन के डेमो क्लास जिसको नाम दिया जाता है, और वो 2 या 3 दिन की डेमो क्लास होती है। उस डेमो क्लास को अटेंड करने के बाद तुम उस चीज को जज करते हो कि वो अच्छा है या नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वॉट एवर। और उसके बाद तुम उसमें एनरोल करते हो या जो भी वॉट एवर, जो भी प्रोसेस तुम फॉलो करते हो। फाइन। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जनरली ये होता है कि 2 या 3 दिन में सबसे अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। अच्छा नहीं, इंटरेस्टिंग। भले वो इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फाइन। अब पता होता 2-3 दिन का कंटेंट बिल्कुल उन्होंने ट्रेस कर रखा होता है कि 2-3 दिन में ये करवाना है, ताकि आने वाले को अच्छा लगे। 2-3 दिन के बाद उसका एनरोलमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद तो कुछ भी करेंगे तो सामने वाले को अच्छा ही लगेगा। रीजन क्या है? क्योंकि एक्चुअल में एक चीज होती है ना, तुम खुद से देखना, हर चीज को तुम रियलाइज करना। एक भी चीज में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एक एक चीज तुम रियलाइज करो कि ऐसा हुआ होगा ना तुम्हारे साथ कि कभी कहीं पे गए, 2 दिन में अपने को पसंद आया, अपन ने पे कर दिया। मान लो 20,000 पे करने थे अपने को, अपने पे कर दिया 20,000 रुपए। उसके बाद 10वें दिन से अपने को पता चला कि वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या अच्छा नहीं हो रहा है, या वॉट एवर। क्या करोगे तुम? ये पहले दिन पता चलता तो तुम ज्वाइन नहीं करते, लेकिन अब तुमने ज्वाइन कर लिया तो अब क्या होगा? अब पता तुम खुद को सेटल करने लगोगे। अरे नहीं नहीं यार, अच्छा ही हो रहा है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है कुछ, बाकी अच्छा ही हो रहा है, मैं थोड़ा और एफर्ट लगाता हूँ, मेरे को समझ में आ जाएगा, या जो भी है वॉट एवर, मैं अपनी साइड से, मेरी साइड से एफर्ट में कमी है, वही करना है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें वो नहीं दिख रहा है कि क्या नॉलेज मिलेगा, क्या गेन करोगे, वो नहीं दिख रहा, वो दिख ये रहा है। क्योंकि अगर छोड़ दिया तो ये तो वेस्ट हो गया। तो अब तो तुम्हें करना ही है। तो बस ये वाली चीज को बिल्कुल बाहर निकालना है। इसीलिए तुम्हारे पास ये 10 days है। और ये डेमो सेशन बिल्कुल भी नहीं है, सेशन आज से स्टार्ट होगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ कंटेक्ट सेट करने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंड होते ही आज से इवन सेशन स्टार्ट होगा, अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे अपन। फाइन। बट ये 10 days सब जस्ट तुम्हारे पास है, तुम्हें जज करने के लिए क्या चल रहा है, सेशन एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम उस लेवल पे जाने वाले हो। और एक चीज एक्सपेक्टेशन में पहले दिन ही तुम्हारी सेट कर रहा हो, तुम्हें लग रहा है कि इस लेवल पे जाने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं, नहीं, वो तो कचरा है, वो मिल जाएगी। ये होगा तुम्हारे साथ या नहीं? 0% रिजेक्शन। उस पर जब जज करना, और उसके बाद तो जो भी फर्दर फर्दर जो भी है वो करने की रिक्वायरमेंट है। फाइन। और 10 days इसीलिए भी है कि पता है एक्चुअल में ऐसा होता, माहौल बनता है पहले 3-4 दिन में,
तुम सबको जज करते हो, कहीं भी जाओगे तो एज ए जैसे मेंटर मैं हूं या कोई और मेंटर है तो तुम उनको जज करोगे कि अरे देखते इनको कितना नॉलेज है। और ऐसा होना भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि तुम किसी से सीखने जा रहे हो तो उसको ज्यादा आना चाहिए। फाइन। तो ये 3-4 दिन तुम जज करने में निकालोगे। एक चीज मैं ओपनली यहाँ पे तुम्हें कन्वे कर रहा हूँ, फर्स्ट डे, फर्स्ट आवर, जो भी चीज चल रही है, टेक्निकल चीज जो चल रही है, उसमें किसी भी तरीके का तुम्हारा डाउट अगर तुम पूछते हो और बाय मिस्टेक अगर उसका इंस्टेंट रिप्लाई तुम्हें नहीं मिलता है सही, ऐसा नहीं कल 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 बात करेंगे, परसों बात करेंगे, या ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है, ये काम की चीज नहीं है, ये नहीं। अगर तुम्हें उसका सही रिप्लाई मिलता है, नहीं मिलता सपोज, तो तो बिल्कुल तुम्हारे लिए हर चीज जो एज ए कोड प्लैनेट आज चल रही है, जो इन फ्यूचर चलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हें। कहीं भी जो असिस्टेंट चाहिए सारा असिस्टेंट मिलेगा तुम्हें। ठीक है ना? ये पहले दिन पहले सेशन में बोल रहा हूँ, दिस इज माई वर्ड, मार्क माई वर्ड्स। ऐसा कोई डाउट हो तुम्हारा तो ये तुम्हारे लिए है। पता है, ये पहला पहला सेशन नहीं है। मैं इवन स्टूडेंट के साथ मेरा बहुत ज्यादा अफेक्शन है, और ऑब्वियसली कोड प्लांट इसलिए स्टूडेंट के साथ काम करता है, उनको राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करता है। प्लस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत सारे ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ये हर जगह वर्ड होता है, तो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कोई इस कैटेगरी में जा रहा हो। अगर तुम में से कोई कर पाओ तो ये शो मानना मान लो, ओपन चैलेंज मान लो, या तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मान लो। फाइन। और पता है एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ईच एंड एवरी वन जो इस जर्नी का पार्ट बनेगा। अब मैं ये लाइन क्यों मेंशन कर रहा हूँ कि जो इस जर्नी का पार्ट बनेगा, क्योंकि तुम चाहो या नहीं चाहो, बट हर एक कोई 10 दिन के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। फाइन। उसके लिए पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तभी तुम इस जर्नी का पार्ट बन पाओगे। और जो भी इस जर्नी का पार्ट बनता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे होना चाहिए। दैट इज द मोटो, कि वो खत्म होने के बाद, ये सेशन खत्म होने के बाद, इस 6 मंथ की जर्नी के बाद तुम किसी को भी चैलेंज करके बोल सको, कोई डाउट ला जिसका मैं आंसर नहीं करूँ, ऐसा कुछ ला। फाइन। दैट इज थिंग। नाउ ये चीज मैंने मेंशन क्यों की है कि हर कोई जर्नी का पार्ट नहीं बनेगा, तो मुझे लगता है तुम्हें पता होगा, नहीं पता है तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। कि जैसे कोविड सिचुएशन में कंपनी को ओनली पोटेंशियल कैंडिडेट चाहिए थे ना, वैसे एज ए कोड प्लानट हमें भी ओनली पोटेंशियल कैंडिडेट चाहिए। बट डेफिनेशन थोड़ी अलग है पोटेंशियल कैंडिडेट की हमारी। वो डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल कैंडिडेट की? हमें वो नहीं चाहिए जिनको सब कुछ आता है, या जो जो मानते हैं कि उनको आता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी आता है किसी को भी। तो किसी को ये डाउट है कि मुझे कुछ आता है, तो आई एम हियर एनी टाइम। जब भी तुम्हें मन में ये डाउट आए कि मेरे को कुछ ज्यादा आता है, मेरे को कुछ आ रहा है, कुछ भी, वो कोई सा भी टेक्निकल फील्ड हो, तो हम बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। फाइन। और वो जैसे सेशन स्टार्ट करेंगे तब तुम खुद को जज करना कि तुम्हें कितना आता है। क्या तुम्हें 5% भी आता है, वो तुम जज करना। फाइन। बट पोटेंशियल कैंडिडेट की जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो ये है कि तुम्हें पहले से कुछ प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। जो इस 10 डेज के सेशन में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, उसके भी आप पे 10 डेज के बाद एक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। और अगर उस टेस्ट में तुम शॉर्टलिस्ट होते हो, तो तुम उसके बाद तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपनी जर्नी कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो या नहीं। तो अगर इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। अब इसमें एक्चुअली में चाहिए क्या? जस्ट जो 10 डेज में हम पढ़ाते हैं उसी के अराउंड सब कुछ, जो 10 डेज में तुम सीखते हो उसी के अराउंड वो टेस्ट होगा। प्री रिक्विजिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइन। तो इसमें बस जस्ट ये जज करना है, आर यू 100% सीरियस रिगार्डिंग योर करियर? फाइन। क्या तुम, वो माइंडसेट है तुम्हारा कि तुम इस 0% रिजेक्शन वाले लेवल पे जाना चाहते हो?
ये अचीव करना चाहते हो, वो पता है ये बहुत सारी चीजें होती है जो टेम्पररी अचीवमेंट होता है। जैसे अगर सिर्फ जॉब इंटेंशन होता तो टेम्पररी अचीवमेंट, एक बार जॉब मिल गई खत्म हो गया। बट जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये 0% रिजेक्शन की, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये हमेशा काम आएगा। बट एक्चुअल में हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली एक जगह तो तुम अपना करियर रखोगे नहीं कि यही रहना मेरे को, तो इसी कंपनी में रहना है, एक जगह जॉब लग गई मैं तो जब तक मतलब रिटायर नहीं होता या फिर जब तक एंड नहीं होती लाइफ तब तक वहीं रहना है, ये तो होगा नहीं ऑब्वियसली। तो क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे ऑब्वियसली। अब जो स्विच करोगे तो होगी कैसे स्विच, वो नॉलेज होना चाहिए तभी तुम स्विच कर पाओगे, अदरवाइज तो उसमें रहने के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन बचेगा नहीं। फाइन, तो 100% कमिटमेंट बस वो चाहिए, दैट यू आर सीरियस। क्योंकि अगर अगर पूरा उसके साथ अगर तुम पूरा डेडिकेशन के साथ अगर 10 डेज के सेशन अटेंड करते हो तो आई नो कि इजीली तुम वो टेस्ट क्लियर करोगे, उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे तुम उस टेस्ट में, उसके बाद तुम इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो। तो दैट इज द थिंग, ये ऑलरेडी हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, अगर नहीं है तो मैंने इसको शेयर कर दिया कि एक्चुअली में क्या रहने वाला है। फाइन, अब किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं डाउट लूंगा ऑब्वियसली, तो बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, मैं उस पर आऊंगा, मैं तो बोलूंगा कि तुम्हारा डाउट क्या है। बट या किसी ने पूछा, मैंने बता रहा हूँ, तो व्हाट इज द मोड, मोड क्या रहने वाला है इसका, तो मोड दोनों रहेंगे। सो ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा। इनिशियल 10 डेज ये ओनली ऑनलाइन ही अवेलेबल है। उसके बाद अगर तुम जयपुर में हो यू कैन कम फॉर ऑफलाइन ऑल्सो, अदरवाइज ऑनलाइन चलेगा पूरा सेशन, जब तक ये जर्नी खत्म नहीं होती तब तक ये ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। स्टार्टिंग 15 डेज तक ओनली ऑनलाइन है, उसके बाद ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा। किसी ने पूछा सर लैंग्वेज कौन सी रहेगी, तो आई थिंक ये तो आपने देखा होगा ब्रोशर, तो इट इज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट, मतलब तुम्हें उस लेवल पे प्रिपेयर किया जा रहा है कि तुम कोई सी भी वैकेंसी, कोई सी भी जॉब के लिए तुम 100% एलिजिबल रहोगे। फाइन, तो जैसे मैंने एक चीज और मेंशन की थी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, तो एक्चुअली पता कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं हम। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि पता कंपनी एक्चुअल में, और यहां से मैं तुम्हें एक और चैलेंज देता हूं, ठीक है ना। एक्चुअली में अपने को ये सिनेरियो बदलना है, एटलीस्ट मैंने सोच लिया है, जो कोड प्लैनेट हमने सोच लिया है ये सिनेरियो बदलेंगे। बट अब इस सिनेरियो को तुम बदल पाते हो या नहीं, तो एज ए चैलेंज में एक तुम्हारे लिए क्रिएट करता हूं। पर एक्चुअल में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्या होती है कि जब कंपनी किसी कैंडिडेट को हायर करती है तो ऑब्वियसली उसको उनके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, तो वो कैंडिडेट डायरेक्ट पहले दिन से उनके प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो पहले कुछ और पे काम कर रहा था, फिर अभी यहाँ पे कुछ बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे चीजें चेंज होती है। तो वो उनके प्रोडक्ट पे कैसे काम कर पाए उसके लिए उसको ट्रेन करना पड़ता है एक्चुअल में, तो वो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। दो चीजें होती है और दोनों में डील होती है, तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट। कॉर्पोरेट कंसल्टेंट का मतलब कंपनी में किसी टीम को लीड कर रहे हैं, एक्टिवली नहीं पैसिवली, मतलब अगर उनको बहुत प्रॉब्लम फेस होती है या फिर किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना है कि ये चीज एफिशिएंटली किस तरीके से होगी, देन वी विल डू। तो करंटली बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं करता, बट बहुत सारी कंपनी में एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ, कि जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है दे कम फॉर सॉल्यूशन एंड वी प्रोवाइड द सॉल्यूशन। अब तुम पता ये तुम्हें लगता होगा, और पता ये क्या फीलिंग होती है, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो नाउ एज इज व्हाट 26 करंट एज, और जिन लोगों को ट्रेन करता हूं मैं उनकी एज, हाँ वो 40 के भी होते हैं, 45 के भी होते हैं। नाउ व्हाट इज द प्राउड मोमेंट, फाइन। तो एक्चुअल में कुछ भी मैटर नहीं करता, मैं हमेशा इसके फेवर में हूं कि एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है, द ओनली थिंग दैट मैटर दैट इज नॉलेज। बट सारे लोग इस फेवर में नहीं है, क्योंकि तुम देखते होंगे ना एक्सपीरियंस वालों के लिए बहुत सारी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है, फ्रेशर के लिए इतनी नहीं है। और इवन हर एक कोई जॉब निकलती तो पहले वो बोलते हैं इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस, तभी तुम इसके लिए एलिजिबल हो। फाइन, हाँ तो वो बिलीव नहीं करते वो लोग, उनको उनको ऐसा लगता है एक्सपीरियंस है तो उसको आता है, फ्रेशर से ज्यादा आता है, और 5 साल का तो उसको 3 साल से ज्यादा आता है।
उनको ऐसा लगता है, इसलिए वो वैकेंसी में पर्टिकुलर ऐसा मेंशन करते हो, सब मेंशन करते हैं 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस वाला चाहिए, 7 साल एक्सपीरियंस वाला चाहिए। फाइन। तो एक्चुअल में ये कॉर्पोरेट कंसल्टिंग और इससे इसके थ्रू बहुत सारे कनेक्शन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कनेक्शन। जयपुर के कनेक्शन है, एनसीआर की बात करो अगर आप, गुड़गांव एंड ऑल, तो यहाँ के कनेक्शन है, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, बहुत सारी कंपनीज के कलेक्शन है। तो यहाँ पे तुम्हें इसके ट्रेनिंग के बाद इवन ये भी तुम्हें मेंशन किया होगा कि वी विल गोइंग टू प्रोवाइड यू जॉब अश्योरेंस। तो ऑब्वियसली इन कॉर्पोरेट में, जहां पे कॉर्पोरेट कंसल्टिंग चल रही, इनको ये मैसेज जाएगा कि अब तुम ऐसे को हायर करो ही मत जिनको ट्रेन करना पड़े। अब हम तुम्हें पहले ही ऐसे कैंडिडेट दे रहे हैं जो पहले दिन से तुम्हारे प्रोडक्ट पे काम करेंगे। फाइन। तो बेनिफिट आपके लिए भी है, क्योंकि ये 15-20 दिन उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट देना एंड ऑल, ये टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बेनिफिट उनके लिए भी है जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस को मैटर करता है। फाइन। तो पता है एक चीज 100% श्योर है, अभी ये 1-2 बैच के बाद ये सिनेरियो है जो कोड प्लैनेट हम बदलने वाले हैं, कि जब हमारे पोर्टल के थ्रू किसी कंपनी में जब स्टूडेंट रैपर होंगे, तो वो ये नहीं पूछने वाला इसको एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि वी विल गोइंग टू ओपनली चैलेंज दैट कंपनी कि एक अगर तुम्हें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसका इंटरव्यू लो सेम लेवल पे इस फ्रेशर का इंटरव्यू, एंड देन यू डिसाइड कि तुम्हें 3 साल वाला कैंडिडेट चाहिए, ये चाहिए। फाइन। तो ये सिनेरियो, अब ये सोच थोड़ी बाहर आनी चाहिए। जो एक्चुअली तुम सोच के देखो तब भी सही है कि अगर किसी को ज्यादा आ रहा है तो फिर एक्सपीरियंस क्यों। फाइन। तो दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ दिस प्रोग्राम। ऑब्वियसली तुम्हारे पास ब्रोशर होगा, तुम्हें कंटेंट पता होगा किस तरह की चीजें चलने वाली है, ऑल। फाइन। अब एक एक चीज और दिमाग में होगी कि ऑब्वियसली मेंटर कौन होंगे एंड ऑल। क्या जस्ट पहले दिन के सेशन के लिए मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूं, या फिर मेंटर में भी रोल है एंड ऑल, ये क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहे होंगे। फाइन। तो देयर इज नॉट अ वन मेंटर, बहुत सारे मेंटर तुम्हारे लिए रहने वाले हैं जो तुम्हें एक्चुअली इस जर्नी में तुम्हें गाइड करेंगे, तुम्हारा साथ रहेंगे। हाँ, इवन आई एम ऑल्सो इन दैट पार्ट, उस जर्नी में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। फाइन। हर एक स्टेज पे तुम्हें गाइड किया जाएगा। तो इसका एक्चुअल में कंटेंट क्या होगा, किस तरीके की चीजें चलने वाली है, हर एक वीक में तुम्हारा एक टेस्ट कंडक्ट होगा अगर जर्नी का पार्ट बनते तो। हर एक वीक में तुम्हारा मॉक इंटरव्यू होगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू अरेंज होगा। फाइन। तो अभी तुम खुद वहां पे पहले पहले जज करना कि क्वेश्चन वो पूछते हैं या क्वेश्चन तुम क्रिएट करते हो। क्योंकि पहले इंटरव्यू में जाने से पहले जितनी चीजें आज के सेशन में मैंने बोली है, और मैंने इवन हर चीज का तुम्हें प्रूफ दिया है, किसी को कोई चीज लगे जो मैंने बोली हो और तुम्हें उसका प्रूफ चाहिए, यू कैन डिमांड। या तो मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं अगर तुम्हें ऑफर लेटर दिखाने लगूँ तो मुझे लगता है फिर 40-45 मिनट उसके लिए अलग से रिजर्व करेंगे अपन किसी दिन। फाइन। तो हर एक वीक भी आप पे तुम्हारा तुम्हें मॉनिटर होगा, तुम्हें मॉक इंटरव्यू होगा, लास्ट में 2-3 टॉप इंटरव्यू होंगे, मतलब ओवरऑल के भी आप पे। हर एक मंथ में एक टॉप इंटरव्यू होगा, हैकाथन चलेंगे इसमें, जिसमें अगर तुम जो भी टॉपर होंगे उनको बहुत सारे इंसेंटिव और वो भी प्रोवाइड होंगे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब पूरा इसको इस तरीके से ग्रिंड किया गया है जो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में ये चैलेंज चाहिए। तुम अगर ये बोलते हो कि 3 साल का एक्सपीरियंस वाले चाहिए, दोनों को इंटरव्यू साथ लेते एंड देन डिसाइड। फाइन। अब तुम सोच रहे हो एक्चुअल में कि अगर मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ उस लेवल में तुम्हारा डेडिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल तुम विलिंग नहीं हो, कोई कुछ नहीं कर सकता।
फाइन, बट वो तुम्हारे अंदर की उसको बाहर कैसे लाना है तो वो तुम मेरे को छोड़ दो। आई थिंक आई एम गुड एट दिस, तो वो हो जाएगा। बट देन उसके लिए पहले बस जस्ट तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा यू आर एट दिस लेवल एट द एंड ऑफ द 10 डेज वो टेस्ट क्लियर करके। फाइन, अब इवन चलो मुझे लगता है बहुत सारी पेप टॉक हो गई मेरे पास, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट थोड़ी देर पहले थोड़ी देर मतलब मैं जस्ट पहले एक तुम सबसे चाहूंगा, अभी तक जो भी मैंने बात की है, जो मैंने प्रूफ दिखाया है, क्या तुम्हारा माइंडसेट तैयार है उस लेवल पे जाने के लिए? क्या 1 घंटे पहले तो तुम जो सोच रहे थे, अभी मुझे लगता है 1 घंटे के अराउंड अपने को हो गया है, क्या थोड़ा सोचने चलना स्टार्ट किया? एक बार जितने लोग मीटिंग में, मुझे सबसे एक बार चाहिए, और उसके बाद आगे अपन फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, वैसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो एक किसी ने पता एक वर्ड मेंशन किया है, किसी एक ने मैंने बात की थी माइंडसेट चेंज होने की, और किसी ने ये वर्ड मेंशन किया है, नाउ आई एम मोर मोटिवेटेड। राइट, मैं एक चीज बताता हूँ एक्चुअल में कि इस सेशन के पीछे का इंटेंशन तुम्हें मोटिवेट करना नहीं था, मैं जस्ट तुम्हें रियलिटी दिखाई है। बिकॉज टू बी टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, वरना मुझे बनना है मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि एक्चुअली में तुमने देखा हो, तुमने सेशन लियो मोटिवेशनल स्पीकर के क्या होता है एक्चुअल में। हाँ, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, बोलेंगे ये करना है वो करना है, भले वो उन्होंने किया है नहीं किया उससे मैटर नहीं करता। हाँ, वो बुक बुक पढ़ के ये करना है वो करना है, इसने 10-12 एग्जाम्पल देंगे, उसने वो किया था, उसने इतनी छोटी सी कंपनी से इतनी बड़ा वो बना दिया, उसका भी स्टार्टअप था, इसका भी स्टार्टअप था, वॉट एवर, दुनिया भर की टाइम पास। उस 10 मिनट में अपने को लगता है अरे यार मेरे को भी कुछ करना है, मेरे को भी बड़ा करना है। उसको होता क्या एक्चुअल में, रियलिटी क्या है मैं बताता हूँ। रियलिटी ये है कि वो सेशन खत्म होने के बाद लैपटॉप खोला अपना, अरे यार बहुत बहुत फुल्ली मोटिवेटेड, हाईली एनर्जेटिक, कुछ करना है, लैपटॉप के सामने बैठे, क्योंकि अपने सेक्टर में तो सारा काम लैपटॉप पे ही होता है ऑब्वियसली, और लैपटॉप के सामने बैठते ही ये एनर्जी डाउन, वो मोटिवेशन डाउन, क्यों? क्योंकि करना क्या है, बड़ा करना है, वो करना वो करना, वो तो वो बोल के चला गया, बट करना क्या है वो तो उसने बताया नहीं, है ना? तो दैट इज नॉट ए स्टोरी, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दिस टैग मोटिवेशन स्पीकर एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली तुम्हें हर एक स्टेज पे ये ये बताने वाला हूँ कि जो भी तुम्हारा मेंटर है वो ये बताएंगे तुम्हें कि एक्चुअल एक्चुअल में तुम्हें करना क्या है। तुम बस खाली उस जर्नी में साथ चलो, तुम्हें खाली साथ चलना है, बाकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम उस लेवल पे इतना डेडिकेटेड हो, तो तुम्हारा कमिटमेंट है, बाकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यू लिव इट, तुम छोड़ दो उसको। फाइन, नाउ जस्ट फॉर 5 मिनट लेट मी नो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो। फाइन, फास्ट मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्चुअली अपन कंटेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये पैप टॉक जहाँ मेरा सेशन लोगे वहाँ ये पैप टॉक होगी एक्चुअली, क्योंकि ये रियलिटी देखा ना। हाँ 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 हाँ, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। राहुल, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, वापस टाइप कर लीजिए, क्योंकि इतना स्क्रॉल करके ऊपर जाके वापस आपका क्वेश्चन फाइंड करना। ओके, सो कुछ कॉमन आंसर है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्चुअल में।
कुछ कॉमन क्वेश्चन है पहले में, और अभी एक बार पोस्ट करना बंद कर दीजिए क्वेश्चन आप, क्योंकि पहले कुछ क्वेश्चन है उनका मैं आंसर करता हूँ। एक्चुअली ये जरूरी है, तो पहले कुछ क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ, उसके बाद अपन कुछ और का कोई क्वेश्चन बचेगा तो अपन उस पर आएंगे। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि सर एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कि एक्चुअल में किसी का क्वेश्चन है कि डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। फाइन, तो लाइक आई सेड प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए कुछ भी, तुम्हें नॉर्मल थोड़ा बहुत नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, दैट इज सफिशिएंट। फाइन, ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर सम मिसकंसेप्शन जो मैं निकालना चाहता हूं। डेटा स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का प्राइम पार्ट है। फाइन, इस जर्नी का प्राइम पार्ट डेटा स्ट्रक्चर है। हर रोज के सेशन में 1 आवर 1.5 आवर वो डेटा स्ट्रक्चर को स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है। फाइन, तो तुम्हारी जर्नी का मेन पार्ट डेटा स्ट्रक्चर है। अब एक्चुअल में लोग किसके पीछे भागते हैं, वो थोड़ा मैं रिप्रेजेंट करता हूं इसको। डेटा स्ट्रक्चर को ऑब्वियसली फॉर इंफॉर्मेशन, डेटा स्ट्रक्चर मेंटरिंग मेरे अंडर में ही रहेगी। एक्चुअल में मैं ही मेंटर करने वाला हूं डेटा स्ट्रक्चर के लिए। डोंट वरी, अगर किसी को ऐसी कोई चीज दिमाग में है तुम्हारे पास, कोडिंग फियर, क्यों डरते डेटा स्ट्रक्चर का कोडिंग के नाम पे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में कोडिंग करनी पड़ती है, एंड डोंट वरी, भूल जाओगे तुम कोडिंग फियर। ये मैं पर्सनल श्योरिटी दे रहा हूं तुम्हें। फाइन, क्योंकि आज तक तुम किस तरीके से सोच रहे थे कोडिंग को लेके, और जब वो सेशन इवन, डोंट वरी, डेटा स्ट्रक्चर सेशन मुझे लगता है 1-2 दिन में अभी से स्टार्ट हो जाएंगे, यू विल गोइंग टू रियलाइज। फाइन, तो एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर जो कि इतना टॉप इंपॉर्टेंट है, वो इसमें मतलब इस करियर आर्किटेक्ट प्रोग्राम में उसको मैं उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करके बोलता हूं। नंबर फर्स्ट होता है जो कोडिंग राउंड क्वेश्चन होते हैं। फाइन, किसी कंपनी में ज्यादा सुना होगा पहला राउंड कोडिंग राउंड है, व्हाटएवर, तो कोडिंग राउंड जो क्वेश्चन होते हैं। नंबर सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन जो होते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। और नंबर थर्ड होता है ट्रिकी क्वेश्चन। फाइन, तो पहली चीज कोडिंग राउंड क्वेश्चन, हाँ, वी विल प्रैक्टिस। और इतने क्वेश्चन तुम लोग करने वाले हो, तो इतने तरीके से मैं तुम्हें सोचना बताऊंगा उसको अप्रोच करने के तरीके, कि कोडिंग फियर, या फिर अगर तुम आज तक तुमने कोई इंटरव्यू दिया हो, मुझे लगता है जितना क्वेश्चन पूछा उसने हो सकता है इंटरव्यू दिया हो और वो डेटा स्ट्रक्चर में लैग करने की वजह से नहीं हुआ हो। जो कॉमन थिंग जनरली ज्यादा लोगों के साथ ही होता है। फाइन, तो वो नहीं होने वाला इन फ्यूचर, उसकी श्योरिटी मैं देता हूं तुम्हें। फाइन, अब पता है एक्चुअल में कोडिंग एक पहला राउंड होता है। अगर कोई कंपनी कंडक्ट करवाती है तो उसका पहला राउंड जनरली कोडिंग राउंड होता है। अगर नहीं करवाती तो हर एक कंपनी कोडिंग राउंड कंडक्ट नहीं करवाती है। फाइन, तो सेकंड और जो थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग और ट्रिकी क्वेश्चन, आज के टाइम पे ऐसा कोई इंटरव्यू होगा नहीं, और जनरली इंटरव्यू में 2 या 3 राउंड होते हैं फ्रेशर लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे थोड़ा ये राउंड और भी बढ़ जाते हैं, 4-5 राउंड होते हैं। तो अगर 5 राउंड होंगे ना, तो पांचों राउंड में एक एक क्वेश्चन इन दोनों में से किसी से बिलोंग करेगा, अगर अच्छी कंपनी हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग और ट्रिकी क्वेश्चन, लोग इसके पीछे भागते हैं और ये 90% जनता कर भी लेती है, लेकिन ये लोग भागते नहीं है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा दिक्कत वाली चीज होती है। तुम देखना नेट पे गूगल करके देखना एंड ऑल, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और ट्रिकी फेज की वजह से होते हैं। फाइन, विल टेक स्पेशल केयर ऑफ दिस। और इवन आज से ही मैं बड़ी कंपनी क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा सकती है, अभी अपन सेशन में इस पेप खत्म होने के बाद इवन आज ही अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन से। हर एक दिन के सेशन में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो तुम्हें भी मैं दूंगा करने के लिए। अपन क्लासरूम में भी उसको डिस्कस करेंगे इस सेशन में भी। फाइन, तो एक्चुअली मैं तुम्हें वो उस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें सोचना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, हार्डवर्क करो,
और डेटा स्ट्रक्चर पूछते तो वो क्या कहता पता है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस उतना बढ़िया है। वो इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो सबका सॉल्यूशन है। बट एक फैक्ट है जिसको भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और जो बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं है, फैक्ट ये है कि दुनिया में इतने क्वेश्चन है ना कि तुम हर एक क्वेश्चन को तो ट्राई कर नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। और जब हर एक क्वेश्चन को ट्राई कर नहीं सकते तो फिर ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसको मैंने ट्राई नहीं किया तो वो तो मेरे से होगा ही नहीं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन तो यही है। तो एक्चुअली क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सोचना, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी डेवलप करना कि एक क्वेश्चन में 50 तरीके से कैसे सोचना है, वो बड़ी बात है। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं, अगर कोई क्वेश्चन तुमने पहले कर रखा हो, देख रखा हो, वो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, वो तो क्वेश्चन तुम कर देते हो, बड़ी बात नहीं है, वो तो रट रखा कर लोगे। क्वेश्चन अगर तुमने आज पहली बार देखा है और तुम ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो, दैट इज द बिग थिंग, एंड दैट इज थिंग आई वांट, और ये होगा। फाइन। इसमें डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कुछ पूछा था, मैंने उसको आंसर किया है। मैं देखता हूँ और कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर करना चाहिए। हाँ, कोई बोल रहा है कि क्या सर मैं कॉलेज के साथ साथ कर सकता हूँ? देखो ऑप्शन क्या है, कोई बोल रहा है मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाता हूँ एक्चुअल में। ऑप्शन क्या है, तुम ये प्लानिंग कर लो कि मैं कॉलेज पूरा कर लूँ उसके बाद मैं ड्रॉप करूँ इसके लिए, कि ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे होंगे तुम, तो करना तो तुम्हें कॉलेज के साथ ही है। और मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हें इतना टाइम बहुत इजीली मिलता है कि तुम इसको कैरी फॉरवर्ड तुम साथ साथ में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फाइन। अभी जैसे ड्यूरेशन में जो डाला गया 6 to 8:30, थोड़े दिन ये चलने वाला टाइम, बट थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, एटलीस्ट 1 घंटा और बढ़ेगा, मतलब 1 घंटा बढ़ेगा, 6 to 9 या ऐसा कुछ। बीच में तुम्हारे एग्जाम भी आ रहे हैं, वो सब उसके लिए सब सॉल्यूशन है, डोंट वरी एट ऑल। फाइन। अब जो ये बोल रहे हैं क्या कॉलेज के साथ मैनेज कर सकता हूँ, मुझे तो एक बात बता दो एक्चुअल में कि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो इतना पढ़ते हो क्या कि मतलब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ एक्चुअल में। तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक्चुअल में कि ये क्या क्या है। पर एक्चुअल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन वाली कैटेगरी में रहते हैं ना, वो पता कौन रहते हैं? हाँ, ये अगेन मुझे लगता है बहुत सारी बातें जो मैंने बोली ना तुम्हारे लिस्ट में शॉकिंग लग रही होगी कि हो क्या रहा है, बट दैट इज अ फैक्ट। जो पता है कॉलेज और इस लेवल में जो टॉपर होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा रिजेक्शन वाली कैटेगरी में रहते हैं थोड़े टाइम के बाद। एक बार वो अपना करियर उस टॉप के हिसाब से थोड़ा अच्छी जगह से स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद वो हमेशा की प्रॉब्लम में रहते हैं एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम वो सेमेस्टर की चीजें वो पढ़ने में निकाल दिया, जो एक्चुअल में इतना काम नहीं आता है। इस बात से एग्री करने में कोई बुरी बात नहीं है, एक्चुअल में ये सही है, एकदम टू द फैक्ट है। फाइन। और इस वजह से उनको वो टाइम नहीं मिला कि वो एक्स्ट्रा अपना वो नॉलेज डेवलप कर सके जो एक्चुअल में चाहिए, वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो जो भी वो फाइन। तो एक बार की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, बट आगे ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स है। फाइन। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस है एक्चुअली, मैं इसको एग्री करता हूं इसमें कि जनरली अगर ये तुम्हें बिना टाइम वेस्ट किए तुम टॉपर की कैटेगरी में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जैसे सपोज करो, मैं मेरी मेंटेलिटी बताता हूँ कि अगर बस जस्ट 65-70% की कैटेगरी में अगर तुम रहते हो, 65-70, हाँ, हर एक कंपनी तुम्हें अलाउ करेगी बैठने के लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा अगर तुम 90 ले आओ ना, कुछ भी नहीं होने वाला, दैट इज फैक्ट। फाइन। लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसके बिना तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ नहीं सकती। तो मुझे लगता है मैं इस पे बाद में बात करूंगा, कभी हम पैप टॉक करेंगे इस पर आराम से, तो बहुत सारे एग्जांपल पे इस पे भी, ये भी बात मैं प्रूफ के साथ ही कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं जस्ट एक नॉर्मल बात करूँ तो मेरे कॉलेज में जो टॉपर था या थी, वो मेरा, वहां पे उस टॉप में कोई कंपैरिजन था नहीं, और आज उल्टा कोई कंपैरिजन है नहीं, तो मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। ठीक है। सो आई थिंक इजीली मैनेज कर सकते हो कॉलेज के साथ, कोई कुछ नहीं है। क्या टेक्निकल बैकग्राउंड होना इंपॉर्टेंट है? मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर ये बोल रहा है मेरे से कि उसकी ब्रांच कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास जो उसको चाहिए वो नॉलेज है, दैट इज ऑल।
फाइन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन, और कोई पर्सनल डाउट होंगे तो वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी इतने लोग मीटिंग में है कि एक-एक डाउट मैं अभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इट विल कंज्यूम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। फाइन, सो नाउ अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, थोड़ा कंटेंट अपन स्टार्ट करते हैं। बाकी ये पेप टॉक लगातार चलती जाएगी, और कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी रिगार्डिंग डाउट है, आई थिंक ऑलरेडी तुम्हारे पास जिस नंबर से कॉल आते हैं, तुम उस पर कॉल करके तुम अपनी क्वेरी कर सकते हो, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। अदरवाइज तुम पर्सनल में से कम्युनिकेट भी कर सकते हो। फाइन, बट अभी सारे क्वेश्चन के आंसर देना आई डोंट थिंक मेरे लिए पॉसिबल होगा इस सेशन में। फाइन, तो अभी अपन थोड़ा कंटेंट की तरफ चाहते हैं। मैं तुम्हें रियलाइज करवाता हूँ इवन पहले दिन के पहले सेशन में कि बड़ी कंपनी जो होती है क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा सकती है, और एक सिंपल क्वेश्चन को किस लेवल पे ले जा सकते हैं अपन। और तुम्हारे सोचने की कैपेबिलिटी क्या है, कि आज से पहले तुम इस तरीके से सोचते थे क्वेश्चन को लेके, अगर नहीं तो आज पहले दिन से वो टेम्पो, वो माइंडसेट के साथ हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे। और जो थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था अपने को डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, और आज तुम एक क्वेश्चन को लेके कितने तरीके से सोच पाते हो, ये थोड़ा प्रूविंग सेशन अपन चलाते हैं। अब बात बहुत हो गई, बात अपन अब कंटेंट की करते हैं। फाइन, उससे पहले वो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं सबसे चाहूंगा जितने लोग मीटिंग में हैं सब, जो भी 1 आवर या जो भी टाइम निकला, मुझे लगता है बहुत निकल गया, और अगर और भी मैं बहुत कम 4-5 घंटे बोलूं तो कम है, बट वो अपन बात करते रहेंगे ऑब्वियसली हर एक मोमेंट पे। फाइन, तो एक बार सब लोग आगे बढ़ने से पहले, या टोटली एक्साइटेड, वांट टू स्टार्ट द कंटेंट, और अभी तक जो हुआ है, यू आर एंजॉयिंग द थिंग्स, थोड़ा टेम्पो सेट हुआ, या एक बार फास्ट। द जोश इज हाई सर। हाँ, अरे बीच में सेशन लीव मत करो, क्योंकि एक्चुअल में वापस एडमिट करना, वो फिर मेरे पास किसी का मैसेज आएगा तब मेरे को दिखता है कि एडमिट कर लो सर, तो बेटर है कि आप लीव ना करें। फाइन, ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम हो गया होगा, तो थोड़ा ब्रेक चाहिए क्या, 5 मिनट का? 5 मिनट ब्रेक चाहिए, पानी वानी पीना, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करना, एक ही जगह बैठे होंगे अगर तो, है ना? ओके, सो ठीक है, मिक्स्ड आंसर है, यस नो यस नो, बहुत सारे लोग हैं, बट मैं चाहता हूँ एक्चुअल में कि टेक 5 to 10 मिनट ऑफ ब्रेक, और फिर अपन सीधा स्टार्ट करते हैं कंटेंट के साथ। ठीक है, और मैं तुम्हें रियलाइज कर रहा था एक्चुअल में बहुत एक्साइटेड चीजें कि किस तरीके से सोचना है। फाइन, तो आई थिंक 7:43 हो रहे हैं, मीटिंग लीव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 7:53 के आसपास अपन वापस स्टार्ट करते हैं, और 8:30 तक जो सेशन चलेगा, तब तक अपन कुछ एक्साइटिंग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। ठीक है, तो ठीक गाइस, अपन 10 मिनट बाद मिलते हैं। तो मीटिंग लीव करने की रिक्वायरमेंट नहीं इसी में रहे, और 10 मिनट बाद अपन कंटेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।